डेथ ऑफ अ सेल्समैन। फाइनल डिसीजन लेता है सुसाइड करने का। पता है क्या करता है? He took his baggages, drives the car and hit and got a truck with an accident. समझ में आया? खत्म. He's no more. He's dead. And what is the last line of Linda? You know क्या line है लिंडा का? What is the last line of Linda? We are free. We are free. We are totally free. And all the taxes and all the bills, including his rents and all, everything. Hello everyone. Today I'm going to discuss the most important writer called Arthur Miller. Arthur Miller. He is the writer who covers the most of the university syllabus. हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस में ये राइटर्स को डाला जाता है. You have to read. आपको पढ़ना पड़ेगा. देखो, लिटरेचर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पोइट्रीज पढ़े, सिर्फ और सिर्फ नॉवेल पढ़े, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा पढ़े, या सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पढ़े. नो, यू हैव टू गो डीपर एंड डीपर. यू हैव टू डाइव, है ना. यू हैव टू टेक योरसेल्फ इनसाइड इट. आपको उसमें जाकर सोचना पड़ेगा. देखो, कैसे रिलेशनशिप चलता है. What is the difference between truth and reality? What is the difference between truth and reality? Truth and reality के बीच में difference क्या होता है? Truth and reality. You have to understand this. Truth and reality in a family. In a family. And this is the same theme which was discussed by D.H. Lawrence in the book called Sons and Lover. Sons and Lover, है ना? Morrell family. याद आ रहा है कुछ? Gertrude Morrell, Mr. Morrell, Paul Morrell. है ना. अब एक चीज समझने की बात यह है कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन में जो पोर्ट्रेयल है, इतना अच्छा पोर्ट्रेयल है that I have never seen such a portrayal, है ना, in another work. This is the best portrayal of a salesman. किस तरीके से एक सेल्समैन का जिंदगी गुजरता है, and especially if he has become father, जब वह बाप बन गया है. समझ में आया? So today I am going to discuss the most important character called Billy Loman. Billy Loman. Billy Loman. Loman. This is the character that always, है ना, comes first when we talk about the writer Arthur Miller. Arthur Miller. ये अर्थर मिलर इतना बेहतरीन लिखता है, इसका कुछ कहना नहीं. समझ में आ रहा है? कहना नहीं, इतना बेहतरीन लिखता है. Portrayal of how reality things, how real things appears to you, next to you, when the situation will come, है ना. आपको याद है लाइन? जब शाम होता है तो आपका जो शैडोज होता है वो क्या किधर बनता है? आगे बनता है. जब सुबह होता है तो शैडोज पीछे बनता है. समझ में आया? So in the morning your own shadow is just beside you, just behind you, आपके पीछे, just at back, standing at the back of you. Your shadows, your own shadows are standing at the back of you. But when the evening approaches, जब शाम होती है ना, that shadows comes next to you, आपके सामने आता है, asks you what you have done till now. This is the thing that has been discussed in the Wasteland by T.S. Eliot, right? अब देखो, truth versus reality. Billy Loman is the most important character in the work called Death of a Salesman. Death of a Salesman, which was published in the year 1949. 1949. If you were asked to tell me in 1949 who has received the Nobel Award, so it is William Faulkner. William Faulkner. 1948, T.S. Eliot. 1947, Andrew Gill. Right? William Faulkner. The most important thing you have to remember here if you are studying literature. So Death of a Salesman. ये Death of a Salesman इतना important work है, आप कभी सोच नहीं सकते. एक सेल्समैन का मौत होता है, ये समझो इस तरीके से. दिस इज माई फिस्ट. एक मेरा, ये जो मेरा क्या है, मेरा हाथ है, मुट्ठी है, एंड इनसाइड इट देयर इज अ मेडिसिन, द मेडिसिन ऑफ लाइफ, ऑफ माई लाइफ. एंड व्हेन आई गॉट माई हार्ट अटैक, आई नेवर ओपन माई फिस्ट. मैंने इस फिस्ट को कभी खोला नहीं. समझ में आया? जब मेरा हार्ट अटैक आया तो गोली इसी में था, मैंने कभी खोला नहीं. अपने ही मुट्ठी में अपना मौत लेकर वो चला गया. This was the man Billy Loman. Billy Loman. Such a great personality you will remember, है ना. किस तरीके से एक आदमी when he goes into the phase of illusion, when he goes into the phase of American dream,
as I have told you earlier when I was teaching you American literature, what is American dream? American dream क्या होता है? American dream का मतलब ही होता है कि एक लड़की, उसको मन है कि मैं काश मैं सक्सेसफुल होती, काश मैं हीरोइन होती, समझ में आ रहा है, काश मैं उस जगह पर होती, मैं I would definitely put on some paint onto my cheeks, some makeups, lipstick, and many other things. If a girl, so girl usually have that American concept, American dream. American dream ज्यादातर लड़कियों में होती है. I'm not supporting that. I'm not supporting or not against any of the gender. But I'm telling the truth because you are in literature. You have to understand that because men's body and female's body has totally different shapes. Okay, different shape. Body organized differently. That gives the discrimination between a man and a woman. This is also the part of Victorian literature. When I will teach you, आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगता है कि इस तरीके का कुछ चीजें हैं, कुछ क्या बहुत सारे चीजें हैं, you are not reading this, and while facing an interview we can live not able to answer appropriately and effective, so that deals in your destruction in an interview, your words would start stammering. Definitely आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे. If you want कि आपको इस तरीके का चाहिए, आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, you can join my course and you can get the course from the telegram link has been shared in comment box, right? अब आते हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय बिली लोमन. एक ट्रिप से लौटता है ना, एक ट्रिप से लौटता है, मान लो ये ट्रिप पर गया था बिली लोमन, एक ट्रिप से लौटता है, सेल्समैन ट्रिप, सेल्स ट्रिप से लौटता है, ये सेल्स ट्रिप से लौटता है, समझ में आ रहा है? अब बात यह है कि इसकी वाइफ देखती है कि सेल्स ट्रिप पर he did not earn that money or maybe for the purpose that he went there that proved to be unsuccessful. So definitely he must go and visit some another company so that he can get a job. इसकी वाइफ लिंडा है ना, इसकी वाइफ लिंडा. अब देखना इसमें एक जो है, 1 सेकेंड, हाँ देखो अब बात आता है इसकी वाइफ. अब इसकी वाइफ किसका? लोमैन का, सॉरी लिंडा लोमैन. इसकी वाइफ बोलती है कि एक काम करो, अब जाओ, अब तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं ना, आप जाओ वहाँ, एक मैं बात की हुई हूँ है ना, बॉस से बात करो और वहां पर कंपनी में जॉब ले लो. अब ये जो आदमी है कि कौन? बिली लोमैन इज ऑलवेज इन डिल्यूजन. आप हमेशा ये इल्यूजन्स में रहता है, समझ में आ रहा है? और क्या करता है ये? हमेशा सोचता है कि हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल, हाउ कैन आई बी अर्न सम मनी, है ना, एंड हाउ कैन आई बिकम एंड द पर्सन लाइक बेन, हिज रिच ब्रदर. उसका भाई है, एक बहुत ही अमीर है, बोलता है कि मैं उसके जैसा कब बनूंगा यार, बनूंगा तो उसके जैसा बनूंगा, तो नहीं बनूंगा. ये जो उसके अंदर जो पैदा लिया है ना, दैट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शंस ऑफ हिज ओन लाइफ एंड गिविंग द पेन टू द होल फैमिली. दिस इज द थिंग, समझ में? अगर कोई बेटा नालायक निकल जाए, अगर कोई बाप ही कुछ उल्टा पुल्टा काम करने लगे, तो वो जो परिवार होता है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है. दिस इज द थिंग आर्थर मिलर हैज ट्राइड टू कन्वे हियर इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, राइट? अब समझना, बिली लोमैन जो है, अब बेचारा जाता है उस कंपनी में, एंड व्हेन ही फेसेस द इंटरव्यू, आपको पता है क्या बोलता है वहां पर? जैसे ही वो इंटरव्यू में बैठता है, you cannot imagine that he starts considering that I am the richest man, I am the richest guy on this world, and I have number of property, some property in and that place, some Brooklyn, है ना, ब्रुकली यहाँ पर सेटिंग है. अर्थर डेथ ऑफ अ सेल्समैन का, अर्थर मिलर का यहाँ पर सेटिंग है, समझ में आया? ब्रुकली में. तो सोचा मेरे यहाँ पर बहुत महंगा घर है. when the boss asked the question कि बताओ why do you want to get this job, और क्या ऐसा कुछ रहा, that what circumstances that led you and to get this job, क्या रहा? तो ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, I have number of property, I have number of money, and number of person as well. मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, लेकिन आ गया because it was the choice of my wife and it was the choice of my both the sons. सन का नाम अब आता है, टू सन. एक का नाम है बीफ, एक का नाम है हैप्पी. बीफ लोमैन, हैप्पी लोमैन. He is the person who supports Billy Loman, and Biff is the person of reality. He accepts the truth.
he accepts the truth. But this man, Billy Loman, is not able to accept the truth because he always lives in the wonderful world, the world of imagination, where he wants himself to be transferred in the world of a successful person. But एक यहां पर बात आता है, व्हाट इज लॉयलिटी? लॉयलिटी क्या होता है ना? लॉयलिटी क्या होता है? देखो, लॉयलिटी का मतलब ये हुआ, यू नेवर ट्राई टू चेंज दैट पर्सन। आप उस आदमी को कभी भी चेंज नहीं करोगे उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सन्स एंड लवर पढ़ते हैं तो उसमें जो गर्ट्रूड मॉरेल है वो पता है क्या करती है? अपने हस्बैंड को चेंज करने का प्रयास करती है, अपने दोनों बेटा, पहले विलियम, देन शिफ्टिंग हर इमोशन टुवर्ड्स पॉल मॉरेल, पॉल पे भी जाकर के वो अपना इमोशन है ना उस पर शिफ्ट करती है और उन लोगों को चेंज करने का प्रयास करती है। The one who wants to seek है ना some change in others, that also results in the destruction of that person। समझ में आ रहा है? अगर एक लड़की या लड़का जो जैसा वैसा ही एक्सेप्ट करो, जो जैसा वैसा ही एक्सेप्ट करो, समझ में आ रहा है? बहुत सारे प्यार करने वाले, बहुत सारे लवर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे नॉवेल्स में मैंने कैरेक्टर्स को पढ़ा है कि जो जैसा है, यू नेवर ट्राई टू सीक सम चेंज इनटू दैट पर्सन, देन इट प्रूव्स टू बी लॉयलिटी। वो लॉयल है। समझ में आया? आप कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं उस लड़के में या लड़की में, लॉयलिटी है। समझ में आया? तो ये जो है लिंडा लोमैन जो है, से इज द वुमेन ऑफ लॉयलिटी, से इज डीलिंग विद चैस्टिटी। पता है, ये कभी नहीं चाहते कि वो चेंज हो। knows everything, she knows everything because he is her husband। वो लड़का जो है बिली लोमैन उसकी हस्बैंड है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि बदले। समझ में आया? Not a single reply in this work is available so that you can prove that she wanted to change her husband। Mind it। अब आओ यहां पर, बीफ लोमैन जो है इन रियलिटी, अब क्या होता है, जब वो बिली लोमैन जब इंटरव्यू में बैठा तो इंटरव्यू में ऐसा था बात बोलता तो बोलता है बॉस बोलता है कि if you do not want this job because you are already a successful man, having money, having number of people around you, आपके इर्द गिर्द बहुत लोग काम करते हैं, why you need this job? तो फिर आपको ये जॉब क्यों चाहिए? I will offer this job to somebody else। हाँ, दूसरे को दे दूंगा। And he was fired from the office when he entered his house the moment her wife saw him, the moment his है ना the moment his son Biff saw him, जैसे ही देखता है, and his wife saw him, देखती है, तो बिफ बोलता है कि what happened, got the job or not? बिफ अचानक से पूछता क्या आपको नौकरी मिला? He replied that no। अरे इसमें क्या रखा है? ऐसा बोलता है, इसमें क्या रखा है? समझ में आया? He wants to be successful in a very short period of time and successful उस तरीके का जिस तरीके का सक्सेसफुल कम समय में पॉसिबल नहीं है। लिविंग इन illusions, समझ में आ रहा है? लिविंग इन ड्रीम, fulfilling, only satisfying his imagination by imagining that क्या अमीर बिहेवियर को इमेजिन करना, हमें अमीर का बने, उस तरीके का अमीर बनने के लिए बहुत ही समय चाहिए। समझ में आया? अब क्या होता है? द सिचुएशन गॉट चेंज, द फैमिलीज हाउस है ना वो ऑक्शन होने को है, पैसा नहीं, अभी वो रेंट भर पा रहा है, सो अब क्या करे, ऐसा सिचुएशन बनता है। तो यहां पर एक सिचुएशन और आता है, जो कैरेक्टर है बीफ लोमैन, देयर इज अ कैरेक्टर बीफ लोमैन। मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, आप लोगों का कहना था कि सर है ना एक ऐसा कुछ बताइए जो मजा आ जाए। देखो, लिटरेचर को इस तरीके से फील करो कि आपको समझ में आए कि क्या मेरे लाइफ में क्या उतारा जाए, क्या नहीं उतारा जाए। समझ में आए? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, बट लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके हालात को, आपके चीजों को समझने में इस तरीके से आपको माहिर बना देगा, इस तरीके से आपको मास्टरी करा देगा, आप सोच नहीं सकते। समझ में आया? अब देखो क्या होता है। अब देखो, बीफ लोमैन जो है, इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पड़ेंगे। If you are trying to get job as assistant professor, want to get appointment as assistant professor, if you are facing an interview, so if any there you will be asked, sir, go and teach me something about Arthur Miller।
So you would definitely be confused over there. If you're not read enough, you have not prepared enough, so definitely you are going to lose your interaction with the interviewers. आप वहां पर जाकर उन लोगों से फंस सकते हैं. समझ में आया? And suppose you know Arthur Miller, you know some of his work, but when you have not read by diving into the matter, so definitely you would not perform for a long period of time over there. You have to understand this, right? Biff Loman. अब देखो बिफ लॉमैन क्या कहता है, समझना. Biff Loman realized and he got to know about the relationship of his father with some another girl. उसको पता लगता है कि मेरे पिताजी का कहीं ना कहीं एक और लड़के से रिलेशनशिप है, and my mother is very much loyal, and this definitely proves to be wrong. ये सही में गलत है, ये सही में गलत है. समझ में आया? बिफ, because he deals with truth. ये truth वाला आदमी है, reality वाला आदमी है. It doesn't go in illusions. ये कभी illusions में नहीं जाता है. It doesn't imagine of American dream. वो कभी भी American dream नहीं देखता, क्योंकि इसे पता होता है कि what is needed in this world is money, and he knows how to put all the person by their characters. He knows everything, but Billy Loman does not know how to put the another person as their characters, because you are the CEO or CEO of your life. As through social media I was listening so the very good quotation that appeared, that soothed to my ear, मेरे कान में आकर सुनाई देता है, तो मुझे फील होता है कि this can be a good answer to everyone, है ना? If you are reading Death of a Salesman. पता है क्या था? पता है क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता है क्या था? देखो क्या बोलता है. Leave the people as they are. Don't judge a people. Don't judge a people, है ना? Because everyone is not similar. Don't judge people, है ना? बोलता है कभी भी लोगों को जज मत करो, क्योंकि उन लोग कभी एक जैसा नहीं होते और ना कभी बन सकते हैं. और जो तुम चाहते हो वो बन जाओ तो कभी बनेंगे नहीं. आप क्या करो, उन सारे पीपल्स को, है ना, आप जिस जगह पर प्लेस देम वेयर दे बिलोंग टू, उस जगह पर उनको प्लेस करो जहां पर उन लोगों का जगह है, क्योंकि आप जो है सीईओ ऑफ योर कंपनी है, सीईओ ऑफ योर लाइफ है. फायर करो, समझ में आया? कभी फायर करो, कभी फाइल करो, कभी उनपे कुछ भी बोलो. दिस इज द चॉइस ऑफ योर लाइफ, राइट? अब देखो, Biff Loman deals in truth and reality. Deals in truth and reality. And the most important thing is here that Biff gets to know about some secret of his father, that my father is having some relationship with another girl, and this is wrong, because my mother is loyal. She waits for him at the night and for the food or at the dinner also. और ये ऐसा लगता है कि this is not the good thing, because he lives in illusions, and living in illusions and imagining of American dream can lead to his destruction and the destruction of the whole family. So Biff, यहाँ से Biff का connection जो है ना कट होता है towards his father. So Biff now have a very less emotion towards his father. बहुत ही कम इमोशन है जिसके पास बच गया. एंड जब देखता है विली लोमैन, देखता है कि अब जो है द सिचुएशन गॉट कॉम्प्लिकेटेड, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, पूरा सिचुएशन बदतर से बदतर हो रहा है. आई एम नॉट एबल टू पे माय टैक्सेस, आई एम नॉट एबल टू पे माय रेंट, अलाउंसेस एंड ऑल, जो कुछ भी है मैं पे नहीं कर पा रहा हूं. तो ही टुक द फाइनल डिसीजन दैट दिस इज द ओनली थिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, फ्रॉम माय youth, where I was earning some money, and maybe I had some insurance in insurance company, so this is the only thing where I can go with. बोलता है कि कभी तो मैं कुछ कमाया था और कभी मैं इंश्योरेंस कराया था, अब वक्त आ गया है ये काम करने का. He took the final decision to commit suicide. Understand that? He took the final decision to commit suicide. This is the most important thing here. Death of a salesman. फाइनल डिसीजन लेता है सुसाइड करने का. पता है क्या करता है? He took his baggages, drives the car and hit and got a truck with an accident. समझ में आया? खत्म. He's no more, he's dead. He's no more, he's dead. And you know that in reality, इसके जो फैमिली मेंबर्स थे, लिंडा, बीप, उन लोगों को पैसा मिलता है. And what is the last line of लिंडा? You know क्या लाइन है लिंडा का?
What is the last line of Linda? We are free. We are free. We are totally free. And all the taxes and all the bills, including his rents and all, everything has been fulfilled. सारे कुछ जिस जगह पर पैसा जाना चाहिए था सारी जगह पर पैसे चले गए. And even the amount which is now available, जो बचा कुछ भी, after all the deduction, after all the fulfillment, the amount that is with them, है ना, वो अमाउंट से हम लोग आगे जिंदगी चलाएंगे. एंड हेयर, यहां पर देखो क्या समझ में आता है. जब लास्ट फनरल हो रहा है, जब लास्ट फनरल हो रहा है, कॉफिन ले जाया जा रहा है, जो बोला करता था बिली लोमैन कि आई हैव नंबर ऑफ पीपल, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जहां मैं काम करता हूं, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग काम करते हैं. आई हैव नंबर ऑफ मनी, richest person, having my son a great job and a well paid job, my wife is also having jewelry, number of money and the property all around. आज क्या होता है, वेरी लेस बोल सकते हैं, बहुत ही कम आदमी उस फनरल के पास आते हैं. समझ में आया? डेट सोज क्या सोच करता है, क्या बताता है कि जब आपके कब्र के पास बहुत कम आदमी आए हैं, इसका मतलब या तो आपने गलत काम किया था, या फिर आपको कोई लोग मानते नहीं थे, या फिर आपके साथ, आपके लोगों के साथ कनेक्शन बहुत ही खराब था. यू हैव बैड कनेक्शन विद द अदर पीपल इन द सोसाइटी. कोई नहीं आते हैं, बहुत कम आदमी आते हैं. एंड सपोज उसका घोष देख रहा होगा तो उसको फील होता होगा कि मैंने ही, दैट इज द मर्सी ऑफ मिस्टर बिली लोमैन, मैंने ही अपना लाइफ को बर्बाद कर दिया अमेरिकन ड्रीम में जाकर के. एक लड़की जो कि बहुत ही छोटी, मतलब कि छोटी उम्र की है और धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसके दिमाग में अमेरिकन ड्रीम आता ही आता है कि मेरे पास ये रहता, मेरे पास ये कपड़ा रहता, मैं इतना महंगा पहनती, मैं जूती पहनती, ये पहनती, वो करती, लिपस्टिक लगाती, है ना, पूरा मेकअप्स लगाती, सब कुछ करती, मेरा ये घर होता, मेरा ये घर होता, मेरा इससे शादी होता, मैं राजकुमारी होती, यू नो डैट, सब कुछ होता. समझ में आया? लेकिन बात ये है कि आफ्टर ऑल जैसे वो बड़ी होते हैं, क्या वो उस जगह पर पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती. सो एट अ टाइम गेटिंग द अमेरिकन ड्रीम, it easy and it is fair, but living the life of American dream, it's not fair. It leads to a destruction called dark romantics. So this was the thing. This is important from the point of view of American literature. If you're reading English literature for your preparation TRE4, UGC NET and BET exam and other assistant professor exam and many other SLET and SET exam in English literature throughout India, if you're not reading this, if you're not reading like this, so definitely you can miss a question in an interview. And especially जो मैंने अभी बताया है, एक चीज ध्यान रखना, ये मेंस की तरह मैंने बताया है. अगर आप यूपीएससी पेपर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 ऑप्शनल आप प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि 250 मार्क्स, पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 500 मार्क्स टोटल, है ना, आपको इस तरीके से आते हैं आंसर, you will write, you will put on, you would be able to add some of the important point over there, otherwise you will lose the marks and lose the civil services exam. So this was the thing I wanted to discuss with you guys. And if you want really that this kind of knowledge can help you and would result in fulfilling your needs in English literature, so definitely you can subscribe to my channel, like my channel. एंड इफ यू फाइंड, आपको लगता है कि हाँ जुड़ना चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप मेरे देख सकते हैं यूट्यूब पे, है ना, वो आपको मिल जाएगा, और आप वहां पर लिंक को ज्वाइन करें. वहीं पर फर्दर क्लासेस के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, सेपरेटली आप मुझसे पूछें, जो क्लासेस रहेगा प्रोवाइड कर दिया जाएगा. और धीरे धीरे बेट क्लासेस और यूजीसी नेट क्लासेस एंड अदर एग्जामिनेशन के क्लासेस, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो रिटन का हो, चाहे वो ओनली ऑब्जेक्टिव हो, चाहे इंटरव्यू हो, each and everything I'm going to discuss there. So all the information would be provided right there. So that's it for today. Have a great day.